السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کی بحث، جس میں آج ہمیں پڑھنا ہے چینجنگ آف ٹینس۔ یہ بہت ہی اہم بحث ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھنا ہے تاکہ آگے ہمارے لیے سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں فعل میں تبدیلی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فعل میں تبدیلی۔ یہ کل ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ قواعد اس سلسلے میں باقی بھی رہ گئے تھے، کل وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ رہ گئے تھے۔ آج اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے یہ مناسب ہے کہ فعل میں تبدیلی کے سلسلے میں جو قواعد کل آئے تھے اس پر ایک سرسری نظر ڈال لیا جائے، تاکہ آگے کے جو قواعد آ رہے ہیں اس کے سمجھنے میں مدد ملے۔ دیکھتے ہیں، اگر رپورٹنگ ورب حال یا مستقبل میں ہے تو رپورٹڈ اسپیچ کے ورب کا ٹینس نہیں بدلتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو جس طریقے سے کل یہ بات بتائی گئی تھی اور بار بار اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ یہ جو اصطلاح ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں، اس میں ڈائریکٹ میں دو چیزیں ہیں، یعنی اس جملے کے دو جز ہوتے ہیں، ایک رپورٹنگ ورب ہوتا ہے اور ایک رپورٹڈ اسپیچ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تو ہمیں ان ڈائریکٹ میں جو دو جز ہوتے ہیں سینٹنس کے، جیسے رضی سیز باسط گوز ٹو اسکول، اس میں دو جز ہیں، جن میں سے پہلا جز یہ انورٹڈ کاماز سے باہر ہوتا ہے اور دوسرا جز انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، ان ناموں کو یاد رکھنا، یہ اس میں بہت مدد ملے گی۔ یعنی بار بار آپ کو رپورٹنگ ورب، رپورٹڈ اسپیچ کی بات گھما کر بار بار لے کر آئیں گے صاحب کتاب، چونکہ ایک اصطلاح ہے، ان کے الگ الگ نام ہیں، اس لیے نام کے ساتھ ان کو پہچان لینا بہت ضروری ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں۔ تو یہ جملہ آپ دیکھ رہے ہیں، رضی سیز باسط گوز ٹو اسکول، اس جملے میں دو جز ہیں، رضی سیز، یہ جو جملہ ہے یہ انورٹڈ کاماز سے آزاد ہے، الگ ہے، اس کو رپورٹنگ ورب نام دیا جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی پہچان رکھنی کہ کہاں رپورٹنگ ورب ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں رپورٹڈ اسپیچ کی بات آتی ہے تو یہ انورٹڈ کاماز کے بیچ میں رہتا ہے، ان دونوں کو ذہن میں اچھی طریقے سے رکھنا ہے۔ اب آئیے، اتنا سمجھ لینے کے بعد ہم قاعدہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اگر رپورٹنگ ورب حال یا مستقبل میں ہے تو رپورٹڈ اسپیچ کے ورب کا ٹینس نہیں بدلتا ہے۔ یہ بات یعنی رپورٹنگ ورب اگر جب انہوں نے کہا تو یہاں آپ اس جملے کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ رپورٹنگ ورب سے مراد کیا ہے اور وہ کہاں ہوتا ہے۔ تو رضی سیز، ٹھیک ہے، تو اگر رپورٹنگ ورب حال یا مستقبل میں ہے، یعنی آپ کا یہ جو پہلا جملہ جو انورٹڈ کاماز سے باہر ہوتا ہے، یہ اگر حال یعنی زمانہ حال میں ہو، مستقبل یعنی زمانہ مستقبل میں ہو، تو کیا ہوگا؟ رپورٹڈ اسپیچ کے ورب کا ٹینس نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ جو انورٹڈ کاماز میں رپورٹڈ اسپیچ ہے، اس کا جو ورب یہاں گو آیا ہے یا دوسرا ورب آیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو انڈائریکٹ میں جوں کا توں اتار دیں گے، جیسے آپ یہاں مثال سے واضح ہے۔ دیکھیے، رضی سیز دیٹ باسط گوز ٹو اسکول، یہاں دیکھیے ڈائریکٹ میں رضی سیز باسط گوز ٹو اسکول، رضی سیز دیٹ باسط گوز ٹو اسکول۔ اس طریقے سے مستقبل کا بھی ایک دیکھیے، چونکہ یہاں انہوں نے حال کے بارے میں بتایا، اب یہ مثال مستقبل کے بارے میں، رضی ول سے عبد الکریم پلیڈ کرکٹ۔ اب یہاں رضی ول سے دیٹ عبد الکریم پلیڈ کرکٹ، یہاں دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، چونکہ یہ رپورٹنگ ورب آپ کا جو ہے یہ حال میں ہے، یہ مستقبل میں ہے، اس لیے یہاں تبدیلی نہیں ہوئی۔
اگر रिपोर्टिंग वर्ब हाल में हो या मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होता, इनडायरेक्ट में जू का तू चला आता है। तो ये मिसाल आपको कल वजाहत के साथ बताई थी, आज इसके बारे में मुख्तसरन सिर्फ देखते हम चलते हैं। तीसरी मिसाल देखिए, ही हैज सेड टू मी शमीम हैज सोल्ड अ पेन। ये देखिए परफेक्ट का जुमला है, तो यहाँ देखिए ही हैज टोल्ड मी दैट शमीम हैज सोल्ड अ पेन, यहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट जो कि हाल का है इसलिए यहाँ कोई तब्दीली इनडायरेक्ट में नहीं हुई है। अब यहाँ जो सबसे अहम चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, कायदा नंबर 2 है रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो। कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आप पहले बता चुके हैं क्या होता है, समझ चुके हैं, तो उसी को कह रहे हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो और रिपोर्टेड स्पीच का फेल हाल या मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के फेल को माजी में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामास के बीच में होता है, इसके फेल को माजी में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस किताब में इस बात की वजाहत सही से नहीं आई है, इसलिए हम दूसरी किताब से इसमें हेल्प लेंगे। ये देखिए इसमें बता रहे हैं कायदा नंबर 2, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में मुंदरजा देल चेंजिंग करते हैं। कायदा नंबर 2 बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में क्या है, मुंदरजा देल चेंजिंग करते हैं। वो क्या है देखिए, यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, हाँ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर माजी में, यहाँ कायदा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में मुंदरजा देल चेंजिंग करते हैं। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में तब्दीली करेंगे। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को देखना होगा कि वो किस हालत में है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो अपने मद्दे मुकाबिल पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो अपने मद्दे मुकाबिल पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे मिसाल यहाँ देखिए, ही सेड दे बाथ डेली, ठीक है, उसने कहा कि वे रोजाना नहाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और तो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो वर्ब है ये बदलेगा, किस में जाएगा, यानी अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे ही सेड दैट दे बाथ डेली, तो यहां देखिए सेड आ गया है ना, दे बाथ डेली, तो ही सेड दैट दे बाथ डेली, ठीक है। तो यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे ही सेड शी इज कुकिंग, यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है कॉमास के अंदर देख रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अब ये इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जैसे ही सेड दैट शी वाज कुकिंग हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म वाला है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां हो जाएगा। जैसे यहां मिसाल देखिए, ही सेड शी हैज रिटन एन एसे, ठीक है। तो ये देखिए शी हैज रिटन एन एसे, ये आपका परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब ये अपने मद्दे मुकाबिल पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट में हो जाएगा। तो ही सेड दैट शी हैड रिटन एन एसे हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये अपने मद्दे मुकाबिल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
चला जाएगा। देखिए हैज, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड बीन आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा। मिसाल देखिए, ही सेड शी हैज बीन टेकिंग, ठीक है, हर बात फॉर हाफ एन आवर। तो अब ये पास्ट परफेक्ट में ये उसमें चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। मिसाल यहां देख रहे हैं, ही सेड दैट शी हैड बीन टेकिंग हर बात फॉर हाफ एन आवर। अजीज तलबा, तो ये इस तरीके से हुआ प्रेजेंट की, यानी अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो अपने मद्दे मुकाबिल पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन इसमें और आगे बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है यानी माजी है पहले से, तो ये इसमें भी तब्दीली होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब ऑलरेडी माजी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अगर है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा इनडायरेक्ट में। देखिए मिसाल, ही सेड ही ऑफर्ड सलाह, यहां देखिए ही ऑफर्ड सलाह, तो इसको इनडायरेक्ट में अब ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड ऑफर्ड सलाह हो जाएगा। उसने कहा कि उसने नमाज पढ़ ली, ठीक है, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड ऑफर्ड सलाह हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है अगर, यानी आपका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, तो वो इनडायरेक्ट में जाकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और मिसाल देखिए, जैसे अच्छा वाज वर प्लस वाज वर आईएनजी फॉर्म, ये हैड बीन आईएनजी फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही सेड द पीकॉक वाज डांसिंग, तो अब ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाकर के इसकी शक्ल ये हो जाएगी, ही सेड दैट द पीकॉक हैड बीन डांसिंग, ही सेड दैट द पीकॉक हैड बीन डांसिंग हो जाएगा। अब इसमें इस पे गौर कीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें सेम यानी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा। यानी पास्ट परफेक्ट है तो अब कहां जाएगा, कोई उसके जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इस तरीके से ये जुमला यूं होगा, ही सेड ही हैड गॉन टू दिल्ली, ये यहां देखिए ही हैड गॉन टू दिल्ली, ये पास्ट परफेक्ट में है तो अब ये इनडायरेक्ट में जाएगा तब भी यही रहेगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली, यानी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो अब इसके लिए भी दूसरी जगह जाने के लिए कोई जगह नहीं है और ये जा नहीं सकता, इसलिए सेम वही रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। मिसाल देखिए, यानी हैड बीन आईएनजी फॉर्म, ये हैड बीन आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। जैसे ही सेड ही हैड बीन वेटिंग सिंस 4 o'clock, ही तो इनडायरेक्ट में देखिए इसकी शक्ल वही रहेगी, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग सिंस 4 o'clock। अजीज तलबा, ये दो बहुत अहम कायदे थे जिसको इस किताब में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है इन्होंने, जिसको मिसाल के साथ आपके सामने अभी रखा गया। अब यहां पे देखते हैं कि कायदा नंबर 4 कल रह गया था, इसको पढ़ते हैं। कायदा नंबर 3 के मुंदरजा झेल खिलाफ कयास, ठीक है। यहां कायदा नंबर 3 क्या है, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और रिपोर्टेड स्पीच का फेल भी माजी में हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। नेस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के मुंदरजा झेल वर्ब्स में तब्दीली नहीं होती है, जैसे कबीर सेड टू करीम जकी प्लेड वेल,
Kabir told Karim that Zaki had played well. I had already locked the door. The peon said, ठीक है, the peon said that he had already locked the door. कायदा नंबर 3 के मुंदरजा रेल खिलाफ कयास हैं, यानी कायदा नंबर 4 ये कायदा नंबर 3 के मुंदरजा रेल खिलाफ कयास हैं, यानी जो कायदा नंबर 3 में ये बातें बताई हैं तो ये मुंदरजा रेल कुछ ये आ रहे हैं, ये उस कायदे के खिलाफ हैं। वो कायदे के खिलाफ क्या हैं? देखिए, नंबर 1 अलिफ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और रिपोर्टेड स्पीच के फेल में वुड हो, शुड हो, मस्ट हो, कुड हो, माइट वगैरह का इस्तेमाल हुआ है तो इन वर्ब्स में कोई तब्दीली नहीं होती। इसमें यह कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और रिपोर्टेड स्पीच के फेल में वुड आया है, शुड आया है, मस्ट है, कुड है, माइट है वगैरह का इस्तेमाल हुआ है तो इन वर्ब्स में कोई तब्दीली नहीं होगी, जू का तू उतारा जाएगा। मिसाल देखिए, बात वाज़ेह हो जाएगी। डायरेक्ट जैसे शी सेड फातिमा मस्ट वर्क हार्ड, अब यहाँ देखिए मस्ट आया है इसलिए इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वही रहेगा, शी सेड दैट फातिमा मस्ट वर्क हार्ड, है ना। यहाँ देखिए डायरेक्ट, आई सेड टू यू स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर। आई सेड टू यू स्टूडेंट्स, आई सेड टू यू स्टूडेंट्स शुड ओबे द टीचर। अब यहाँ इनडायरेक्ट में लाएंगे तो आई टोल्ड यू दैट स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर हो जाएगा, ओबे द टीचर हो जाएगा। अब बा में देखिए कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के माजी में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के फेल में कोई तब्दीली नहीं होती है। आपने ये देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के माजी में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के फेल में कोई तब्दीली नहीं होती है। कायदा ऊपर पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में तब्दीली करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के माजी में होने के बावजूद भी, होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के फेल में कोई तब्दीली नहीं होती है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड कब नहीं होती है? अगर रिपोर्टेड स्पीच के फेल के जरिए हमेशा सच बात या आदत जाहिर हो, जैसे द टीचर सेड टू मी। ठीक है, अब यहाँ देखिए द टीचर सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये माजी में है तो होना कायदे के हिसाब से ये चाहिए था कि रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली हो, लेकिन चूंकि यहाँ ऐसी बात बताई जा रही कि फेल के जरिए हमेशा सच बात मालूम हो रही है और आदत जाहिर हो रहा है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का इसमें तब्दीली नहीं होगी, जू का तू उतारा जाएगा, बावजूद है कि रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है। देखिए द टीचर सेड टू मी द सन इज हॉट। ठीक है, द टीचर टोल्ड मी दैट द सन इज हॉट, चूंकि एक सच है, ये हकीकत है कि सूरज गर्म ही होता है, इसलिए ये सच बात है तो इसको जू का तू उतारेंगे। ही सेड टू हिज ब्रदर, ठीक है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंज। अब यहाँ देखिए, यहाँ ही सेड टू हिज ब्रदर ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका वर्ब क्या है? माजी में है, तो इसमें कायदे के हिसाब से होना ही चाहिए था कि रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है इसके वर्ब में तब्दीली होती, लेकिन तब्दीली यहाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये आदत जाहिर कर रहा है। तो अब ये इनडायरेक्ट में जुमला यूं होगा, ही टोल्ड हिज ब्रदर दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है, इसी तरीके से इस जुमले को देखिए, ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। यहाँ देखिए इस जुमले में रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड है, ये माजी में है, तो कायदा के हिसाब से होना ये चाहिए था कि रिपोर्टेड स्पीच के फेल में तब्दीली होती, लेकिन यहाँ तब्दीली आप नहीं देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये सच बात यहाँ बयान हो रही है, यानी जब बिल्ली भाग जाती है तो चूहे अपने बिल से निकलकर खेलने लगते हैं, तो ये एक सच है, एक हकीकत है, इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट में जब ये जुमला बनाएंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी और इस जुमले की शक्ल ये होगी, ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, द माइस विल प्ले। तो अजीज तलबा, ये इस तरीके से ये आपका फेल में जो तब्दीली का कायदा था पूरी तफसील के साथ आपके सामने आया है। अब इसमें मजीद और देखने के लिए हम दूसरी किताब का सहारा ले रहे हैं। देखिए इसमें एक कायदा बताया था कि अगर
रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात कही हो, अगर यहाँ देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात कही गई हो जो हमेशा बदस्तूर रहती हो, यानी सच रहती हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड, ठीक है, स्पीच नहीं बदलते हैं। जैसे ही सेड द अर्थ इज राउंड, उसने कहा जमीन गोल है। अब चूंकि जमीन वाकई में गोल है इसलिए सच बात है, तो रिपोर्टिंग वर्ब माजी में होने के बावजूद यहाँ तब्दीली नहीं होगी, तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड रहेगा। ही सेड द सन इज हॉट, ठीक है, ये मिसाल आ चुकी है। ही सेड दैट द सन इज हॉट। ही सेड द कोल इज ब्लैक, उसने कहा कि कोयला काला होता है, वाकई में कोयले की शक्ल काली होती है, एक सच बात है, तो ही सेड दैट द कोल इज ब्लैक। तो इस तरीके से ये आपका मुकम्मल हुआ है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं यहीं पे अपने इस बहस को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में ज़मायर की तब्दीली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।